Hello all. Welcome to this session of previous year questions on solutions. हम स्टार्ट करते हैं नीट 2019 से। इसमें दो क्वेश्चंस अपीयर किए थे। हम लोग बारी बारी से एक एक देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप इज 1 वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, 2 इथेनॉल प्लस वाटर, 3 एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड and fourth हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। अब कौन सा मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा which will be having a negative deviation? माने maximum boiling point isotopes are those which shows negative deviation from Raoult's law, यानी जिनके लिए delta H solution should be less than 0 and delta V solution should be less than 0. That is a negative deviation. और ऐसा होगा कब? When there will be strong interaction between the two components of the solution. And out of the four options available, the strong interaction will be between water and nitric acid. So, water plus nitric acid show negative deviation and hence they form maximum boiling isotopes. और इसीलिए हमारा इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन 1. Now let's see the next question that was being asked in NEET 2019. Second question था for an ideal solution the correct option is option 1 था delta S mix equals to 0 at constant temperature and pressure, delta V mix is not equals to 0 at constant temperature and pressure, third था delta H mix equals to 0 at constant temperature and pressure, और fourth था delta G mix is equals to 0 at constant temperature and pressure. अब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है। जब भी सॉल्यूशन बनता है स्पॉन्टेनियस होता है। सिमिलरली डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज डिस्टर्बेंसेस बढ़ते हैं। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस में इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसीलिए डेल्टा H mix should be equal to 0 and delta V mix should be equal to 0, यानी neither the volume should change nor the enthalpy. तब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए चार कंडीशंस होनी चाहिए। डेल्टा G should be less than 0, delta S greater than 0, delta H mix should be equal to 0 and delta V mix should also be equal to 0, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 जहां पे हम कह रहे हैं डेल्टा H mix should be equals to 0. नीट 2018 में सॉल्यूशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था सच, पर नीट 2017 में वापस से इसके ऊपर दो क्वेश्चंस आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आया था इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट Kf will be 1 doubled, 2 halved, 3 tripled and 4 unchanged. तो इसमें हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि Kf is the characteristics of solvent, यानी वो solvent का characteristics होता है Kf and it does not depend upon the solute. solute कितना है उसके ऊपर। Kf का वैल्यू कैसे देते हैं? Kf equals to m naught r Tf square upon 1000 डेल्टा H फ्रीज केल्विन kg मोल इनवर्स, जहां m नॉट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, Tf फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और डेल्टा H नॉट फ्रीज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट है। यानी Kf जो है इट इज एंटायरली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोल्यूट, और इसीलिए यानी मोलालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो we say if the molality of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant will be constant, यानी it will remain unchanged, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. नीट 2017 में जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो था which of the following is dependent on temperature? 1 molality, 2 molarity, 3 mole fraction और 4 weight percentage. हमको पता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर सपोज हम लोग ये चारों जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे उनके फॉर्मूलाज देखते हैं तो मोलालिटी जो है वो मोलालिटी में इट इज ऑलवेज वेट,
mass है, there is no volume at all, so this does not depend upon temperature. Molarity में volume included है, so always we know that volume is a function of temperature, और इसीलिए molarity will depend upon temperature. Then we just talk about mole fraction, again ये weights का ratio है, so this will not at all depend upon temperature, or weight percentage is again related to masses, so this will not be related to temperature. So which of the following is dependent upon temperature is, तो उसमें एक ही होना चाहिए जिसमें वॉल्यूम आना चाहिए उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, अगर आता है तो दैट इज मोलारिटी, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. अब हम क्वेश्चन लेते हैं नीट 2016 फेज 1 से. में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया था, which of the following statements about the composition of the vapor pressure over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? अज्यूम करने के लिए बोला था that the temperature is constant at 25 डिग्री सेल्सियस और वेपर प्रेशर दिया हुआ था at 25 डिग्री सेल्सियस. बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ था 12.8 kPa और टोलिन का दिया था 3.85 kPa. ऑप्शन 1, the vapor will contain higher percentage of benzene. Option 2, the vapor will contain a higher percentage of toluene. Option 3, the vapor will contain equal amounts of benzene and toluene. And option 4, not enough information is given to make a prediction. और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी या एक रूल पता होना चाहिए which is called as a Novolof's rule. Now what is this Novolof's rule? According to Novolof's rule, at any fixed temperature, the vapor phase is always richer in more volatile component as compared to the solution phase. मतलब अगर सपोज हमारे पास में बीकर क्लोज वेसल है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, लेट अस से उसके अंदर है बेंजीन और इसके अंदर है टोलिन, और बेंजीन का वेपर प्रेशर है P0B और इसका है P0T, such that P0B is greater than P0T. तो दोनों में से वेपराइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? बेंजीन की ज्यादा होगी. सो बेंजीन का कंपोनेंट इन द वेपर फेज विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द टोलिन. दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द Novolof's रूल. और वही हमसे पूछा है कि जब हम लोगों ने उसको 1:1 रेशियो में मिलाया है, सच दैट XA इज इक्वल टू XB, XA equals to XB, जितना XA उतना ही XB है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना कंपोनेंट्स का उतना परसेंटेज जो है वेपर फेज में ज्यादा होना चाहिए या वेपर में ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर नीड टू बी आंसर 1, दैट इज द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन जो कि नीट 2016 फेज 1 में आया था. सेकेंड क्वेश्चन में दिया था at 100 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of a solution of 6.5 grams of solute in 100 grams water is 732 mm. If Kb equals to 0.52, the boiling point of this solution will be. Let us say हमारा solution बना by adding a solute A and solvent B. So what is the data given? क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग को दिया हुआ है solution of 6.5 grams of solute, यानी WA दिया हुआ है, that is 6.5 grams. Then WB दिया हुआ है, that is equals to 100 grams and that is a water. Okay, और हम लोगों को vapor pressure दिया हुआ है. हमको पता है water का vapor pressure P0 should be equals to 760 mm at 100 degrees Celsius, because when the temperature is given to be 100 degrees Celsius. Okay, और PS solution का वेपर प्रेशर हम लोग को दिया है 732 mm. ना इसके ऊपर से हम लोग पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. वी नो दैट P0 minus PS upon P0 should be equals to XA. Therefore P0 minus PS upon P0 should be equals to NA upon NA plus NB,
बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बीइंग फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम लोग Na को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो दिस विल बी नियरली इक्वल्स टू Na अपॉन Nb. So we can write down P naught minus Ps upon P naught equals to WA upon MA into MB upon WB. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम लोग को मिलेगा 760 minus 732 upon 760 should be equals to WA is 6.5 into molecular mass of solvent is 18 divided by MA नहीं पता, हम निकाल सकते हैं, into WB which is 100. Now solving for MA we get molecular mass of the solute equals to 30.6 grams, that is 30.6 grams. अब अगर सपोज मोलिकुलर मास हमको मिला तो वी कैन जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी. वी नो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू केबी इनटू डब्ल्यूए इनटू 1000 अपॉन MA into WB. So we get, by substituting the value 0.52 into WA, again WA is 6.5 into 1000 divided by MA is 30.6 into 100, delta TB का वैल्यू आएगा 1.10. Now delta TB is T minus T naught, जहाँ पे T is boiling point of solution and T naught is boiling point of solvent. So T minus T naught will be equals to 1.10 or T will be equals to T naught plus 1.10. Now boiling point of water is 100 plus 1.10 which is equals to 101.1 degrees Celsius, nearly equals to 101, and that's why our answer should be option 1, that is 101 degree Celsius. Now let us look at the questions from NEET 2016 phase 2. इसमें भी दो क्वेश्चंस आए थे. पहला वाला क्वेश्चन है the Van't factor I for a dilute aqueous solution of a strong electrolyte barium hydroxide is. अब क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, सो लेट्स से BaOH/2 ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा टू फॉर्म Ba2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव. इसका मतलब N का वैल्यू हो गया 3 आयंस बने हैं. देन अगेन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा शुड बी नियरली इक्वल्स टू 1, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना. क्योंकि इसका डिसोसिएशन होगा, सो फॉर डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर 1 equals to alpha is 1 I-1 upon, क्योंकि n का वैल्यू 3 है, 3 minus 1, so 1 equals to I-1 upon 2. So I-1 should be equals to 2, so I will be equals to 2 plus 1 or I will be equals to 3. So the Van't factor should be equals to 3. So इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. सेकंड क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन. डेल्टा H मिक्स इक्वल्स टू 0, डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू 0, डेल्टा P इक्वल्स टू P ऑब्जर्व्ड माइनस P कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ डेल्टा G मिक्स इक्वल्स टू 0. अब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है.
आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा जी मिक्स शुड बी लेस देन 0 क्योंकि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। सो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के कारण डेल्टा मिक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होता है। डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स शुड बी इक्वल टू 0 तभी आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी देयर शुड नॉट बी एनी डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये जो डेल्टा पी इक्वल टू पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड इक्वल टू 0, ये भी राउल्स लॉ को ओबे करे। डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 राउल्स लॉ, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 राउल्स लॉ। डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इट शुड बी लेस देन 0। सो incorrect statement amongst all these four is option 4 और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। अब हम बात करते हैं AIPMT 2015 क्योंकि 2015 में नीट नहीं हुआ था, AIPMT हुआ था। इसमें भी 2 क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चन हम लोग AIPMT AIPMT जो 2015 हुआ था वहां से उठाते हैं और इसका था कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1.00 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोगों को मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पता होना चाहिए, व्हिच सेज दैट कि मोलालिटी विल बी इक्वल टू XA अपॉन XB इनटू 1000 अपॉन MB, where XA is mole fraction of the solute and XB is a mole fraction of the solvent. So therefore we can write down M equals to XA upon 1 minus XA into 1000 upon MB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मोलालिटी 1 दिया हुआ है, हमको XA कैलकुलेट करना है 1 minus XA into 1000 upon MB। अभी aqueous solution बोला है तो solvent is water, so molecular mass of water। On solving this we get the value of XA equals to 0.0177। That means हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.